Hi friends, welcome to my YouTube channel Learn with Pratiksha. In last lecture we have studied the first part of brain neuroanatomy, in which that we have studied the what is nervous system, flow chart of that classification of nervous system, and theoretical part of classification of nervous system. In this chapter in this part we are going to study about the brain neuroanatomy second part, that is cellular architecture, neurons, and classification of neurons. Okay, so let's start it. Cellular architecture. The nervous tissue is made up of nerve cells or neurons and neuroglial cells. As we know that our body is made of many cells, cells after tissue. When the combinations of cell take place, when the group of cell take place, there is tissue form. After tissue there is organ, after organ there is organ system, and after organ system there is body. Okay, so same like that, in the last lecture we have seen that nervous system, okay, that organ system, that is nervous system. Then what kind of cell that nervous system is made up of? That is nerve cells. Cells is also known as neurons and neuroglial cells. So let's start. First, neuron. Each neuron is made up of following: a cell body, collectively form the gray matter, the nuclei in the cell, and ganglia in the peripheral nervous system. जो सेल बॉडी रहता है, ये सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी रहता है उसको वो कलेक्टिवली फॉर्म रहता है ग्रे मैटर से. उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं इन सीएनएस, और गैंग्लिया बोलते हैं उसको पीएनएस में. देन इन न्यूरॉन there is a two type of process, two varieties of process, cell process, that is dendrites and axon. जो डेंड्राइट रहता है वो बहुत ही ब्रांच रहता है, इन मोर अमाउंट में रहता है, तो उसको ग्रीक भाषा में उसको डेंड्राइट्स बोला गया है, जो ब्रांच ऑफ ट्री. ओके, आर मेनी शॉर्ट एंड रिचली ब्रांच्ड. फिर बाद में जो एक्सॉन रहता है, जो सिंगल रहता है न्यूरॉन में, न्यूरॉन सेल में, और वो इलोंगेटेड रहता है, उसके नीचे एक्सॉन टर्मिनल रहते हैं, और जो फॉर्म करता है वाइट मैटर. ओके, एक्सॉन इज अ सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस. कलेक्टिवली द एक्सॉन फॉर्म्स ट्रैक्ट्स white matter in the CNS and the nerves in the peripheral nervous system. Now, functions of neurons. What is the function of neuron? Each neuron is specialized, sensitive and conductivity. Okay, जो न्यूरॉन्स रहता है वो स्पेशल रहता है सेंसिटिविटी में और कंडक्टिविटी में. The impulse can flow in them with great rapidly, in some cases about 125 meter per second. जो अपने न्यूरॉन्स रहते हैं वो बहुत ही स्पेशल रहते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, बहुत ही स्पेशल सेल रहते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, बिकॉज वो इम्पल्स को बहुत जल्दी से फ्लो करते हैं विद ग्रेट रैपिडली, और इन सम केसेस वो 125 मीटर पर सेकेंड की दूरी पार कर सकते हैं इन पर सेकेंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल दैट अपन ने तवे पे हाथ रखा, गरम तवे पे, तो उसको अपन बहुत जल्दी से निकाल देते. अपन वेट नहीं करते कि हाँ बाबा अपने को अब गरम लग रहा है, फिर अब इम्पल्सेस जाएंगे, फिर आएंगे, अपने को सेंस देंगे, फिर अपन निकालेंगे. नो, देर इज़ नॉट that no much time we will need. In a fraction of second we remove that hand from that hot pan. Okay, and this is only because of the neurons, because they passes the impulses to the cell body, to the dendrites, to the CNS very rapidly in the fraction of second. That is, in some cases they pass the impulses per second, that is 125 meter per second. The impulse flows towards the cell body in the dendrites and away from the cell body in the axons. जो impulse रहते हैं, I will show one diagram. जो
इम्पल्स रहते हैं वो फ्लो कैसे करते हैं सेल बॉडी से लेके डेंड्राइट्स तक, और अवे कैसे होते हैं डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी देन एक्सॉन. ओके, now we will see the classification of neurons, which is a very special cell in the nervous system, and their classification. So classification of neurons are based on according to the number of their process, according to the length of axon means किसकी neuron की. Okay, according to the shape, according to size, and according to function. Now according to the number of their process, how many process are there? Two process, that is dendrite and axon. Multipolar, bipolar, pseudo unipolar and unipolar. जो मल्टीपोलर रहता है उसमें जो डेंड्राइट्स रहते हैं वो बहुत रहते हैं, इन लार्ज अमाउंट में रहता है. ओके, और जो मोस्ट कॉमन न्यूरॉन जो रहते हैं ह्यूमंस में वो मल्टीपोलर रहते हैं. आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ मल्टीपोलर. दिस इज मल्टीपोलर डायग्राम. सी, डेंड्राइट्स आर in large amount. Okay, this is dendrites, this is soma. Okay, this is soma, this is nucleus, this is axon, this is nasal granules. जो माइलिन शीट के बीच में जो जगह रहती है, जो स्पेस रहता है उसको नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं. और जो एक्सॉन का टर्मिनल रहता है, ये लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन टर्मिनल्स. ओके, देन बाइपोलर. जो बाइपोलर रहता है उसमें वन डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन रहता है, इसलिए उसको बाइपोलर कहा जाता है. ओके, दे आर कन्फाइंड टू द फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑफ द रेटिना. उसको रेटिना का फर्स्ट न्यूरॉन बोला जाता है. गैंग्लिया ऑफ 8th cranial nerve and the olfactory mucosa. This is a diagram of bipolar. Yes, okay, bipolar, dendrite, soma, axons. Then pseudo unipolar. Now pseudo means what? False. ये pseudo unipolar जो न्यूरॉन रहते वो तो रहते हैं यूनिपोलर, बट दिखते कैसे? बाइपोलर जैसे, इसलिए उसको pseudo unipolar कहा जाता है. ओके, दे आर एक्चुअली यूनिपोलर. ओके, वो क्या रहते हैं? यूनिपोलर, बीइंग विद बट बिकम अ बाइपोलर फंक्शनली. वो फंक्शनली वो बाइपोलर जैसे दिखते हैं. ओके, और वो किस में दिखाई देते हैं? डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व. ओके, देन I will show you diagram of pseudo unipolar. This is pseudo unipolar. देन यूनिपोलर जो ट्रू रहता है. ओके, वो यूनिपोलर ही है, मतलब वन ओनली. ओके, डेंड्राइट और एक्सॉन एक ही रहता है, कॉमन रहता है. दे आर प्रेजेंट इन द mesencephalic nucleus of trigeminal nerve and also occur during fetal life. These cells are more common in lower vertebrae. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन की लेंथ कैसी है? गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन. इसमें लॉन्ग एक्सॉन रहता है और शॉर्ट डेंड्राइट्स रहते हैं, पर डेंड्राइट्स कैसे रहते हैं? इन न्यूमरस फॉर्म में रहते हैं. फिर बाद में जो रहता है वो गोल्गी टाइप 2 रहता है, उसमें न्यूरॉन्स बहुत शॉर्ट रहते हैं. ओके, और वो साइनेप्स एस्टैब्लिश करते अपने बाजू के न्यूरॉन्स में. ओके, न्यूरॉन्स विथ शॉर्ट एक्सॉन्स एंड एस्टैब्लिश साइनेप्स विथ नाइट बोरोइंग न्यूरॉन्स. ओके, देन एमेक्राइन न्यूरॉन रहता है. वैसे तो टू ही टाइप की क्लासिफिकेशन रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन, बट दिस इज एक्स्ट्रा वन दैट इज विदाउट एक्सॉन. ओके, जो एमेक्राइन न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें एक्सॉन absent रहता है, ओनली डेंड्राइट्स इज प्रेजेंट, और वो किस में पाया जाता है? रेटिना ऑफ
आईबॉल में पाया जाता है. विथ एक्सॉन्स ओनली विथ डेंड्राइट्स दे आर सीन इन रेटिना ऑफ आईबॉल. देन अकॉर्डिंग टू द शेप, satellite, basket, fusiform, pyramid. Okay, pyramidal. Then according to size, ये शेप है उसके. ओके, सैटेलाइट जैसा शेप रहता है न्यूरॉन का, बास्केट जैसा रहता है, फ्यूजीफॉर्म जैसा रहता है और पिरामिडल जैसा रहता है, पिरामिडल. अकॉर्डिंग टू साइज, मैक्रो मतलब मोर एंड माइक्रो मतलब ये MICRO माइक्रो एंड MACRO मैक्रो. मैक्रो मतलब बहुत बड़ा और माइक्रो मतलब बहुत छोटा. जो अकॉर्डिंग टू द साइज, मैक्रो न्यूरॉन मोर देन द 7 millimeter साइज that for example bit cell. Then micro neuron less than 7 millimeter size, example granular cells. Now according to the functional classification, neurons का function, first sensory neuron, motor neuron, parasympathetic neuron and sympathetic neurons. Now sensory neurons, primary or first order sensory neuron which are present in spinal or sensory neurons in the dorsal root of ganglia of spinal nerve. जो प्राइमरी ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन रहते हैं वो किस में पाए जाते हैं? अपने डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स. देन सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन जो रहते हैं वो ग्रे मैटर कहाँ रहता है? ग्रे मैटर कहाँ रहता है? वो सेल बॉडी में रहता है. are present in the gray matter of spinal cord and the brain stream. Then tertiary or third order sensory neuron are seen in thalamus. Then motor neurons, somatic motor. Neurons are of two types. First, upper motor neurons are situated in motor area of brain. This synapse with cranial nerves, nuclei and anterior horn of spinal cord. किस में प्रेजेंट रहता है? यही आपने को ये तुम लर्न करना पड़ेगा. Second, lower motor neuron supply various skeleton system. जो somatic, in last lecture only I have told that somatic motor जो रहता है, somatic न्यूरॉन जो रहते हैं वो ज़्यादा तो किसको सप्लाई करते हैं? स्केलेटन. और जो ऑटोनॉमिक रहते हैं वो किसको सप्लाई करते हैं? ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स. ओके. देन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक का. ओके. और सोमैटिक में 12 क्रैनियल नर्व्स रहते हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स रहते हैं. नाउ पैरासिम्पैथेटिक, प्री गैंग्लियन neurons are located in the cranial nerves of 3rd, 4th, 9th, 10th, also in sacral 2 to 4 segment of spinal cord. ये किस में लोकेट रहता है, किस में प्रेजेंट रहता है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा. पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन are located close to the wall or within the wall of viscera. Then sympathetic, preganglion neurons are located in the lateral horn of thoracic 1 to lumbar 2 segments of the spinal cord. Second, postganglion neuron are situated in the ganglia of the sympathetic trunk away from the viscera. जो पैरासिम्पैथेटिक रहता है उसका आउटफ्लो कैसा रहता? जो पैरासिम्पैथिक रहता है उसका आउटफ्लो कैसा रहता है? क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो. और जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो उसका कैसा रहता है? उसको क्या कहता है? उसको क्या कहा जाता है? थोरैकोलम्बार आउटफ्लो. इसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो और उसको थोरैकोलम्बार आउटफ्लो. पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को क्या कहा जाता है? क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो. और सिंपैथेटिक के आउटफ्लो को थोरैकोलम्बार आउटफ्लो. सो दिस इज classification of neurons. What is neurons, function of neuron and their cell architecture. Means
नर्वस सिस्टम किस सेल से बनी वाली है, न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियर सेल. In next lecture we are going to study about synapse and neuroglial cell. So if you like my video, please like it, subscribe it and watch my videos. Thank you so much.